Hello. Hello, sir. Yes, Kuldeep. How do you feel now? How was the session? Yeah, it's wonderful, sir. Amazing. Okay, very good. Did you learn something new today? Yes, sir. I corrected my pronunciation. Okay. Like So before, yes, you please. earlier, I used to pronunciate it wrong. Some words. Okay. So finally, now you have learned that how to pronounce in a correct manner, right? Right, sir. Very good, very good. I would request you to speak in proper manner from today only. And this should be a regular habit, right? Whenever you speak, you should speak in proper manner. Okay. Try Right. to correct yourself all the times. So I was asking you, do you have any doubt related to the topics that we have covered today? If you have any doubt, No, sir, I have no doubt. okay, fine. Do you want to say something? Yes, sir. Yes, please continue. Sir, I want to appreciate the class. Thank you so much, Bita. Did you find this class useful? Yes, sir. Okay, fine. Thank you so much, Purva. I guess you are able to watch the screen now. Is the screen visible? Then please say yes. If you are able to see the screen, please reply with yes. Okay, fine. Thank you for replying, Kuldeep, Nikita, Payal. Thank you so much for replying here. Just a minute. नाउ आप लोगों को ना एक काम करना है बिकॉज अगर कहीं टेक्निकली कुछ इशू फेस होता है इन केस अगर स्क्रीन विजिबल नहीं हो पाती है इन केस तो आप मुझे एट द सेम टाइम यू विल हैव टू इंटीमेट मी कि सर स्क्रीन नहीं आ रही है जो भी टेक्निकली अगर कहीं कुछ ग्लिच आता है देन प्लीज डू इन्फॉर्म मी एट द वेरी मोमेंट एट द सेम टाइम यू ऑल विल हैव टू इन्फॉर्म मी with this we are going to start our session of the day. 1 minute, let me open the slide as well here. Okay, fine. So, once again, welcome you all those students who have participated in this today's live session. And there are two students that I can see. 1 minute. Okay, fine. Other students have also joined. Purva, Jasu Chaudhary, I would like to request you all, please be punctual. I know very well that it might be very difficult for me to be punctual at some point of time because of having new experiences of my life for becoming an online teacher here on my own application, right? So, before starting the session, I would like to ask you a question. Are you able to understand my English? Whatever I speak, are you able to understand everything? Just write down yes or no if you are able to understand everything. And with this, I am giving mic access to everyone. One by one, will give mic access to you all. I would like to start with Kuldeep Dadhich. We'll move forward one by one. Okay. Hi, Kuldeep. How are you? I'm fine, sir. What about you? I'm also good, Kuldeep. So, how was your day today? It was wonderful, sir. Okay, fine. Very good, Kuldeep. So, what are you doing, Kuldeep, nowadays? Are you studying or enjoying your vacations? No, no, sir. I'm studying. You are studying. Very good, very good. So, Kuldeep, where are you residing, beta, right now? Where are you residing? And right now, sir, I'm residing at Jodhpur. Okay, so you are residing in Jodhpur. Yes, Okay, sir. fine. Very good. Okay. As you told me that day that you are doing some kind of competitive preparations like IPSC. Is it Yes, related to sir. IPS, IAS, like, right? Right, sir. Okay, fine. Thank you so much, Kuldeep, for being here. And I would like to give access to the another student now. Yes, sir. Nikita, please be ready, beta. It's your turn. Will one thing, beta, I want to communicate you all very politely. That is, this is a live session, and in this live session, I would like to give access to each and every student, whether he is a paid student or not. To each and every student, I'll give access. Okay, so be honest for raising your hand. If you have raised your hand once and you have talked to me,
then please don't raise your hand again and again until and unless you have any query or you have any concern. Okay, is it clear? Fine. So yes, Nikita, how are you, Nikita? I'm fine, sir. What about you? I'm also good after listening your sweet voice. Thank you, sir. Very good. So Nikita, where are you now, beta? Are you at your home? Yes, sir. Okay, very good. So how was your day? दिन कैसा था आज का आपका? It was awesome day, sir. It was awesome, very good. It was awesome. It was fantastic, mind blowing, है ना? Very good. Yes, sir. Yeah. Are you taking any foundation classes also during your vacation? No, sir. Okay, fine. Just enjoying your holidays, right? Yes, sir. And I would like to request another all other participants, those who have participated in today's live session, please raise your hand. आप अपना हाथ उठाएं. हम बातचीत के साथ स्पोकन के सेशन को कंटिन्यू करेंगे और एक पोल आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, उस पोल को आप लोग आंसर करेंगे. टिल देन जस्ट अ मिनट. यस 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 यस, किसी ने समवन हैज रेज्ड हिज और हर हैंड. ओके, गुड्डी प्रजापत. Hello, Goody. How are you? Hello. Hello. Goody, am I audible to you? If I'm audible to you, then please say something so that I can hear something from your side. Okay, actually I have run a poll over here, and this poll is regarding to the last session that we did day before yesterday. Okay, so only those participants you. Okay, fine. 2, 3, 4. Fine. Good. Fast. Very good. What about others? Why other people are not replying here? Okay, fine. Okay, Jasu Chaudhary, would you like to have some word with me? बात करना चाहते हैं आप? Then you please raise your hand so that I can give you access to talk to me. Because guys, एक चीज है ना, बड़ी सिंपल है, समझने की कोशिश करनी है सभी को. हम सब यहाँ स्पोकन इंग्लिश की क्लास में, राइट? और स्पोकन इंग्लिश में अगर आप लोग बात नहीं करेंगे, अगर आप लोग बोलेंगे नहीं, तो आप लोग बोल नहीं पाएंगे. बिकॉज बोलना जो है ना, वो बोलने से आएगा. और अगर आप बोल नहीं रहे हैं तो आप खुद को पीछे धकेल रहे हैं इंग्लिश बोलने से. सो आई मस्ट से, मैं हमेशा कहता हूं, और मैं शायद पहला टीचर होऊंगा जो मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपको बोलना है. अरे भाई, बातें करो, बातें करनी है. जितनी बातें कर सकते हो उतनी बातें करनी है. यू आर अलाउड टू टॉक एज मच एज यू कैन. यू आर अलाउड टू टॉक. आपको बातें करनी है. दैट्स इट. क्लियर? Okay, fine. So Purva here. Hello Purva, how are you, Gudiya? Yes, sir, I am fine. And what about you? I'm also good, beta. Did you get the notification on time? Yes, sir. Okay, fine. Then why did you join late? Sir, I was not at home. Okay, fine. Just okay, fine. So once again we are going to start our session, today's session, guys. Actually we were waiting for other students to join, and now as we have limited students here, so just going to continue the same session from this very moment of time. And with this, welcome you all to English Ashrams, another class. This is the second class of our course. Here we are going to learn about 1 minute. Okay, fine. So we are going to start your chapter number 2, that is your pronunciation, that how to pronounce different words in different scenarios. किस तरह से शब्दों का उच्चारण हमें करना होता है. आपकी इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो शब्दों को पढ़ना
एक अलग बात है, आपको रीडिंग राइटिंग वो अलग एस्पेक्ट है। आप प्लीज माइक बंद कर दें पूर्वा, बिकॉज इट इज या थैंक यू सो मच। ओके, whenever you require ना, अगर कहीं फील होता है आपको कि हमें बात करनी है, यू आर allowed to talk, you are allowed to unmute your mic or raise your hand whenever you want. Okay, but let me finish the session first. Okay, then we will be having a doubt clearing session as well. Okay, so I was talking about pronunciation. So pronunciation का बहुत बड़ा रोल है। जब भी आप बोलते हैं, हम किन किन शब्दों को सही बोलते हैं, किन किन शब्दों को हम गलत प्रोनाउंस करते हैं, है ना? तो वो सारी चीजें हम आज के सेशन में यहाँ पर सीखने वाले हैं। आज के सेशन का हमारा जो ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव वुड बी करेक्ट pronunciation, how can we correct our words. Sorry Purva, actually I cannot give you access for long time because your mic is troubling all the students. Okay, fine. One thing I would like to request you all, whenever you raise your hand और जब भी आप लाइव होते हैं, आपका माइक ऑन रहता है, तो प्लीज कोशिश करें कि शांत वातावरण में आप लोग बैठें, सो दैट क्लास शुड नॉट बी डिस्टर्ब। क्लास जो है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, राइट? ठीक है, चलिए। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, एंड विद दिस वी आर गोइंग टू move on another slide here. So we would like to start with role of listening and speaking. एक छोटी सी चीज, एक छोटे सा सिनेरियो के साथ शुरू करूंगा। You must have seen boys, you must have seen little kids using abusing words, right? है ना, वो यूज करते हैं abusing words to abuse someone. छोटे छोटे बच्चे मैंने देखे हैं मेरी लाइफ में। बहुत छोटा सा बच्चा है और वो गाली देता है अपने मुंह से। अब वो क्यों देता है गाली? क्योंकि उसकी जो लिसनिंग का एटमॉस्फेयर रहा वो वैसा रहा, है ना। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी अब्यूजिंग जो वर्ड्स रहते हैं उनको इस्तेमाल नहीं किया। बहुत अच्छी लैंग्वेज होती है, बहुत शालीनता से हम लोग बातें करते हैं, राइट? सो मैं बात कर रहा हूँ लिसनिंग की। जैसा हमारा एटमॉस्फेयर होता है वैसे ही हमारी लिसनिंग होती है। मैं पिछले दिनों बाहर गया हुआ था कहीं, और एक वाकया मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। आई वॉज विद माई लिटिल नेफ्यू एंड ही वॉज हैविंग जैगरी अलॉन्ग विद हिज डिनर। तो डिनर के साथ में जैगरी समझते हैं आप सब लोग, गुड़ जो होता है। तो वो गुड़ खा रहा था अपने डिनर के साथ। गुड़ की एक बाइट, एक निवाला लेता, फिर एक बाइट वो गुड़ की खा रहा था। देन आई आस्क्ड हिम कि बेटा ये क्या है? तो बोलता है गुड। I again asked him, मैंने फिर से पूछा कि बेटा ये क्या है? तो बोला गुड। मैंने कहा ठीक है बेटा, मान लिया गुड है। Then I taught him that what is the actual pronunciation, कैसे इसको उच्चारण करना होता है। Then he came to know that कि ये तो गुड था, राइट? तो हम बात कर रहे हैं लिसनिंग की। जैसा हम सुनते हैं, आपने छोटे छोटे बच्चों को सुना होगा बोलते हुए। एक छोटा सा बच्चा जब भी बात करता है तो एक छोटा बच्चा बोलता है कि मम्मा मम दे दो, राइट। गुड्डी सॉरी है ना, मैंने चैट बॉक्स देखा ही नहीं काफी देर से। गुड्डी आपने लिखा है सर मैं इंग्लिश बोल नहीं सकती। इट्स ओके गुड्डी, आपके सर भी नहीं बोल सकते थे। मैं खुद हिंदी मीडियम का स्टूडेंट था। आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, राइट? हमें बोलना है। जब आप बोलोगे, यहाँ इस ग्रुप में, इस पूरी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं, उन सबको यही लगता है कि हम इंग्लिश नहीं बोल सके। अब कल्पना करें कि अगर किसी को इंग्लिश आती ही नहीं है तो उनके आगे तो बोलने में दिक्कत ही नहीं है। यहाँ तो कोई परफेक्ट है ही नहीं। और जब सारे ही अपने जैसे हैं, मुझे भी नहीं आती, आपको भी नहीं आती, किसी को नहीं आती, तो कल्पना करें जब सारे वैसे स्टूडेंट हैं जिनको आती ही नहीं है, तो फिर बोलने में कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना? हेलो, हाँ पूर्वा, यस Yes, sir. You can give now access of the mic. बेटा, we'll give you afterwards ना। I'm just continuing the session first. We'll give you afterwards, right? Okay, sir. We'll definitely give you. Okay, fine. Coming back to the topic. So बोलना है हमें, और बोलने से झिझकना नहीं है, शर्माना नहीं है। आपकी शर्म, आपकी झिझक आपको पीछे धकेलती है इंग्लिश बोलने से। कोई बहुत बड़ी महाभारत नहीं है इंग्लिश बोलना। इट इज वेरी इजी।
और जो चीज बहुत इजी होती है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, चैट बॉक्स में बताइए। जो चीज बहुत इजी होती है, एनीवन, कोई भी बच्चा आप में से रेज योर हैंड, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपसे बात करूंगा। जो चीज बहुत आसान होती है, हमने लास्ट सेशन में बात की थी कि जो चीज बहुत आसान है उसको हम क्या कहते हैं। एनीवन कैन रेज। ओके, यस पूर्वा, 1 मिनट। यस पूर्वा, व्हाट डू वी से, क्या कहते हैं हम? हेलो। Hello, sir. यस पूर्वा, जो चीज आसान होती है इन इंग्लिश व्हाट डू वी से, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था? It's a piece of cake. इट्स अ पीस ऑफ केक। Cake. ओके, very good, very good, very good. I'm giving access to another participant now. Yes, Sonu Sharma, how are you? Okay, fine. Thank you so much, Sonu, for being here, for joining this session today. Okay, we'll give you access afterwards. I'm just going to continue the session first, then we will be having a doubt class, then we'll discuss further. Okay, with this, again, लिसनिंग करना है। लिसनिंग करना किसको है, अब वो गौर से देखेंगे आप लोग। जो अच्छे वक्ता हैं, जिनकी इंग्लिश बहुत पॉलिश्ड है, बहुत साफ इंग्लिश जिनकी है, आपको उनको सुनना है। और ऐसे वक्ता आपको कहाँ पे मिलेंगे? या तो आप हम लोग जैसे बात कर रहे हैं इन दिस live class, you may get that atmosphere of spoken English, right? You may get that listening in this during this class only. And apart from this class, और कौन सी ऐसी जगह है जहां पे आपको अच्छे वक्ता, अच्छे जो स्पीकर्स हैं वो मिल जाएंगे, जिनसे आप लिसनिंग कर सकते हैं। सो जस्ट हैव ए लुक ओवर हियर, लिसन गुड स्पीकर्स। गुड स्पीकर्स कौन से होंगे समझना है। न्यूज रिपोर्टर जो हैं, जितने भी जो इंग्लिश जो न्यूज चलती हैं, इंग्लिश न्यूज के जो चैनल्स हैं, उनके जो रिपोर्टर्स हैं, जो रिपोर्टिंग करते हैं, दोज हु आर प्रोफेशनल इन देयर फील्ड, राइट, दोज हु आर डूइंग वेरी बेस्ट, लाइक बहुत सारे ऐसे हैं, बीबीसी हो गया, और भी बहुत सारे चैनल है, CNN हो गया, एक रिपब्लिक करके एक चैनल है, इंडियन चैनल, बहुत अच्छा चैनल है। वहां पर भी आपको अच्छे जो इंग्लिश के जो न्यूज रिपोर्टर्स हैं, अच्छे एंकर्स जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो आज से और अभी से ही एक आदत बिल्ड करनी है कि हमें ना न्यूज चैनल्स को देखना है, ज्यादा नहीं, 5 to 10 मिनट्स थोड़ा देखना हमें शुरू करना है। एंड सेकेंडली, जिन बच्चों ने उस दिन मेरा सेशन अटेंड नहीं किया था, जिन्होंने फर्स्ट सेशन अटेंड नहीं किया है, वो एक बार चैट बॉक्स में नो लिख के भेजें, ताकि मुझे एक अंदाजा लगे कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नए हैं, ताकि मैं आपको उसी तरह से चीजें करवा पाऊं। क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि किसी भी बच्चे का एक भी टॉपिक यहाँ पर छूटे। एक एक टॉपिक हमें कवर करते हुए चलना है। सो प्लीज टाइप यस और नो इफ यू हैव अटेंडेड दैट सेशन। ओके, जब तक आपके रिप्लाईज आते हैं तब तक मैं आगे बढ़ रहा हूं, और आपकी रिप्लाई लेने के बाद में फिर मैं और अपनी बातों को उसी तरह से बदल दूंगा। क्योंकि अगर आपको नहीं आ रहा होगा कुछ, तो हम पहले वाला भी कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? ओके, रिप्लाई कर दीजिए आप लोग प्लीज यस के साथ, तो मुझे जल्दी से पता चल जाए और हम फिर आगे बढ़े नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके फाइन, सो आई एम ओके। सरस्वती मंदार, आपने अटेंड नहीं किया था, ठीक है। No, but I have seen the session on the YouTube. Okay, fine. Beta, I am not talking about that English grammar foundation courses YouTube link that you have just watched. Okay, I am talking about the very first session of spoken English. आपने लिखा है I have not seen yet, पूर्वा ने लिखा है I have seen yet. बेटा 3 वर्ड हैं, सी एक वर्ड है, इसके बाद में दूसरा एक वर्ड आता है जो आपके विजन के लिए होता है ना, जिसको बोलते हैं लुक। सी एक वर्ड है, लुक एक वर्ड है, वॉच एक वर्ड है। तो जब भी आप वीडियोस देखने की बात करते हैं तो वहां पे हम वॉच का यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ सी एंड लुक। तो आप कहेंगे आई हैव नॉट वॉच्ड येट, या फिर आप कहेंगे आई हैव वॉच्ड, राइट? तो इस तरह से वॉच का यूज करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बिना टाइम बर्बाद किए। सो here you can see, you can watch on your screen, practice makes a man perfect। कि प्रैक्टिस, आपका जो अभ्यास है वो आपको परफेक्ट बनाता है, राइट? और ये जो मैन एक वर्ड आया है, MAN, मैन, अगर यहां पर ये मैन है
तो ये जो दूसरा वर्ड आपकी स्क्रीन पे इस समय आ रहा है WOMAN, इसको क्या पढ़ेंगे आप? MAN का मैन हो जाएगा, तो WOMAN का वुमैन हो जाएगा। सोचिए क्या पढ़ते हैं आप इसे, आपको प्रोनाउंसिएशन आने चाहिए। आप में से ज्यादातर बच्चे इसको किस तरह से पढ़ते हैं मैं वही जानना चाह रहा हूं। आप लोग हैंड रेज करें, ग्रुप टॉक करते हुए कॉन्वर्जेशन के साथ में इस सेशन को आगे बढ़ाऊंगा। छोटी छोटी चीजों को सीखना है, इंग्लिश की बारीकियां बताने वाला हूं गाइस। यस पूर्वा? So we say it woman. वुमन, राइट, वुमन, वुमन, है ना? वेरी गुड पूर्वा। एंड आई रिक्वेस्ट यू अदर्स, all other participants as well, those who have joined this session, right? Nikita, I am coming to you. Yes, Nikita. Woman. Woman. Okay, very good. Okay, let me move to the next slide. So woman is the right pronunciation here. Kuldeep will come to you. I'll come to you. Woman is the right pronunciation for this word. And now on your screen you can see difference between language and expressions. जिन्होंने मेरा पहला सेशन अटेंड नहीं किया था, ये उनके लिए है। जब भी आप भाषा बोलते हैं ना, इंग्लिश बोलना बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे आपको आ ही जाएगी, हम लोग मिलके सीखेंगे। विद दिस, एज यू कैन सी हियर, आंटी चली गई, एक सेंटेंस लिखा हुआ है। अब जाने के मायने हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज, कोई आंटी आपके घर आई हुई थी और वो घर से आपके उठ करके अपने घर चली गई है, तो आप कहेंगे आंटी हैज गॉन। क्या कहेंगे? आंटी हैज गॉन, आंटी चली गई है। अब कल्पना करें, वही जो आंटी हैं जो थोड़ी देर पहले आपके घर आई थी, है ना, वो इस दुनिया से ही चली गई हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि वो दुनिया से ही चली गई हैं, तो आपके चेहरे पे जो भाव होंगे वो भाव होते हैं दुख वाले, जब सैडनेस आती है हमारे चेहरे पे। अब कोई नया नया अंग्रेजी सीखा है, फॉर एग्जाम्पल, है ना, फॉर एन इंस्टेंस ओनली। इंस्टेंस का मतलब होता है उदाहरण, एग्जाम्पल, राइट? तो समझिए कि कोई व्यक्ति नया नया इंग्लिश सीखा है और उसको एक्सप्रेशंस का नॉलेज नहीं है। इसका पता है कि आंटी चली गई, ओके, इसको इंग्लिश में बोलना कैसे है, दैट ही नोज वेरी वेल, बहुत अच्छे से पता है। ही नोज, ही नोज का मतलब होता है वह जानता है ना? अब उसको एक्सप्रेशन नहीं पता और वो क्या बोलता है। अब एक्सप्रेशंस के लिए जब हम बात करते हैं तो सैडनेस के लिए एक्सप्रेशन के लिए जो वर्ड यूज करते हैं, जो फ्रेज यूज करते हैं, वो होते हैं ओ व्हाट अ पिटी, ओ व्हाट अ पिटी। कितने दुख की बात है, जब भी कोई दुख की बात होती है हम बोलते हैं ओ माय गॉड व्हाट अ पिटी, ओ व्हाट अ पिटी। लाइक दिस हम ऐसे एक्सप्रेशंस जताते हैं जब हमें दुख होता है। अब कल्पना करें, मैं खुद पे लेता हूं एग्जांपल। मैं वहां पर गया जहां पर शोक सभा सब लगी हुई थी, आंटी जी की डेड बॉडी सामने रखी हुई है, और मुझे पता नहीं है कि एक्सप्रेशंस होने कैसे चाहिए, एक्सप्रेशंस का हमारी लाइफ में, हमारी लैंग्वेज में क्या प्रभाव पड़ता है। और वहां मैं जाके बोलता हूँ ओ माय गॉड व्हाट अ पिटी, आंटी जी हैज गॉन, व्हाट अ ब्लेसिंग, व्हाट अ पिटी। कल्पना करें किस तरह का माहौल बनेगा वहां पर। अब मैंने बोला बिल्कुल सही है, मैंने कहा व्हाट अ पिटी, जो सैडनेस को एक्सप्रेस करता है, व्हाट अ पिटी। तो मेरे सेंटेंसेस सही हैं, मेरी इंग्लिश बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे जो चेहरे के जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं वो बदल गए। मैंने कहा ओ व्हाट अ पिटी, आंटी जी हैज गॉन, आंटी जी चले गए, लाइक। तो वहां पर बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट जाता है अगर आप इस तरह से एक्सप्रेशंस के अभाव में अगर इंग्लिश बोलते हैं। तो हमें ना सिर्फ इंग्लिश को मुंह से बोलना है, बट ऑल्सो वी हैव टू स्पीक इंग्लिश थ्रू द फेशियल एक्सप्रेशंस एज वेल। आपको चेहरे से भी, आपके चेहरे पे वो एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसी होनी चाहिए कि वो एक्सप्रेशंस आप में दिखाई दें, ठीक है? इसी के साथ आंटी हैज गॉन, एक सेंटेंस आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। अगर अंकल चले गए, मान लो आंटी चली गई, आंटी जी के दुख में अभी अंकल भी चले गए, है ना? अब मैं चाहता हूं 1 by 1 एक्सेस दूंगा मैं सभी को, क्योंकि बातें करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। एनीवन कैन रेज योर हैंड और यू मे टाइप in the chat box as well so that I may have an idea. There is no option of hand raise. बेटा ऑप्शन चला गया मतलब, है ना, ऑप्शन नहीं आ रहा ना अभी हैंड रेज का।
I think it is your problem because there is the option in my device. Okay, Purva, you are getting that option, right? Just a minute beta, actually this was the technical error that we were facing. At your end everything is fine na? Yes, sir. It is visible on my device. On my device, very good, thank you Purva, thank you. Okay, मैं बता रहा था आपको कि आंटी जी हैज गॉन, आंटी हैज गॉन। अब मान लीजिए अंकल चले गए तो आप क्या कहेंगे? अंकल हैज गॉन, है ना? अब घर के बाहर एक छोटा सा कुत्ता था, छोटा सा पप्पी था प्यारा सा, वो बेचारा बीमार था और वो भी चला गया। सब जा ही रहे हैं, है ना? हम कहीं नहीं जा रहे, डोंट वरी, हम नहीं जा रहे कहीं, है ना? तो वो जो डॉगी था प्यारा सा वो भी चला गया, तो आप कहेंगे डॉगी हैज गॉन, या फिर आप कहेंगे डॉग हैज गॉन, है ना? लेकिन ओ व्हाट अ पिटी, अंकल हैज गॉन, व्हाट अ पिटी, डॉग हैज गॉन, लाइक दिस आपको यूज करना है अपनी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है? अब कल्पना करें कि अगर कोई आया है, चला गया है, तो उसके लिए तो वर्ड यूज किया हमने आंटी हैज गॉन। और मैं चाहूंगा गुड्डी अगर है क्या लाइव स्ट्रीम में, अगर गुड्डी है यहाँ पर, नहीं, शी हैज लेफ्ट द कन्वर्सेशन, ओके फाइन, ओके। सो एनीवन एल्स हु सेज दैट कि मुझे इंग्लिश बोलने में दिक्कत आती है, मैं ऐसे स्टूडेंट्स को पहले लाइव स्ट्रीम पर लेना चाहूंगा, ताकि आप लोगों में ना वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए बोलने का इंग्लिश का। और यहाँ इस सेशन में शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है आपको बिल्कुल भी। एनीवन हु हैज हेजिटेशन, जिसको लगता है कि हेजिटेशन है, हम आगे बढ़ते हैं कॉन्वर्जेशन के साथ, अदरवाइज फिर मैं कॉन्वर्जेशन को यहीं स्टॉप करता हूं, कंटिन्यू करूंगा स्लाइड्स के साथ में, और लास्ट में फिर हम डाउट क्लियरिंग सेशन करेंगे। जैसा आप चाहेंगे वैसा कर लेंगे, इट इज अप टू यू ओनली। ओके फाइन। So, Nikita, now you have got that option of raising your hand. Okay, you must have got that option now. Okay, so coming to the next slide here, कार चली गई अगर मुझे कहना है, अंकल हैज गॉन, है ना? कार चली गई के लिए क्या कहूंगा बताइए, चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए आप। कार चली गई, थिंक थिंक थिंक, राइट फास्ट, वेरी गुड, सो दैट टाइम बर्बाद नहीं हो ना आपका ना इस सेशन का। वी हैव कट टू कट टाइम लिमिट्स, वी हैव कार हैज गॉन, पूर्वा वेरी गुड। इन द सेम वे कार हैज गॉन कह सकते हैं, बाइक हैज गॉन कह सकते हैं, नहीं वेंट अवे नहीं होगा सर, वेंट अवे होगा, कार चली, कार गई थी, कार वेंट अवे, इसका फॉर्मेशन अलग हो जाएगा सोनू जी, मैं बताऊंगा आपको। सिंपल सेंस में कार हैज गॉन, कार चली गई है, हम टाइम को रिलेट कर रहे हैं। अभी मैं टेक्निकल वर्ड्स यूज नहीं करना चाह रहा, नहीं तो मैं अभी आपको वेंट अवे और हैज गॉन इन दोनों का डिफरेंस बता सकता हूं अभी, लेकिन अभी मैं टेक्निकली उस लैंग्वेज में आना नहीं चाह रहा, बड़े आराम से चीजों को करवाना चाह रहा हूं। इसको ना जितना डिफिकल्ट हम खुद बना देंगे उससे ज्यादा कुछ मुश्किल हो नहीं जाएगा, तो डिफिकल्ट करना ही नहीं है, बहुत इजी इसको करना है। राम हैज गॉन, कोई लड़का है जिसका नाम है राम, राम हैज गॉन। सिमिलरली श्याम हैज गॉन, अब ये जो श्याम था वो भी जा चुका है। अब कल्पना करें कि श्याम जो गया हुआ था वो वापस आ गया, श्याम जो गया हुआ था वो वापस आ गया है। अब बताइए आप क्या कहेंगे? अब यहां वापस आने के लिए जो वर्ड होगा वो वर्ड होगा कम, ठीक है? तो कार हैज कम हो जाएगा, कार हैज कम, बाइक हैज कम, इसी तरह से राम हैज कम, श्याम हैज कम, माई फादर हैज कम, माई स्क्रीन हैज कम, है ना? बहुत सारे हैं, कोई बच्चा बाहर गया होता खेलने के लिए, है ना? द बॉय हैज कम, बच्चा आ गया, राइट? तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो देखो हमने सीखा हैज गॉन, हमने सीखा हैज कम, हालांकि ये आज की क्लास का पार्ट नहीं था। माई ब्रदर हैज कम, वेरी गुड पूर्वा, वेरी गुड, माई ब्रदर हैज कम, शाबाश। विद दिस मैं चाहूंगा कि बाकी जो लोग भी सेशन में ना, आप भी चैट बॉक्स के अंदर थोड़ा सा एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ताकि आपकी एंगेजमेंट बनी रहे। अगर आप एंगेज नहीं रहेंगे ना इस क्लास के साथ, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आएगी लर्निंग के अंदर। लिसनिंग तो हो सकता है मैं आपको करवा दूं, आप समझना मेरी बात, लिसनिंग मैं आपको करवा सकता हूं, बट स्पीकिंग यू हैव टू स्पीक फ्रॉम योर ओन।
आपको खुद से बोलना पड़ेगा। देखिए बुलवा मैं आपको नहीं पाऊंगा, मैं प्रैक्टिस करवा सकता हूँ, मैं ट्रेनिंग दे सकता हूँ, मैं डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस, डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज दे सकता हूँ, लेकिन मुंह से शब्दों को तो देखिए आपको खुद को निकालना पड़ेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, है ना। एंड when you are joining when you have joined in this spoken English class, then you should speak. Sir, there is no option of hand raise. Okay beta, 1 minute, है ना, I am just going to take a picture of it, then we'll show the technical team that these are the concerns that we are facing. Okay, fine. Okay, Nikita will forward this message to the technical team and we'll sort it out very soon. Okay, inconvenience that is caused to you, it is regretted from my side. Sorry for that, that you are not able to raise your hand. Okay, so here मैंने एक वर्ड फ्लैश किया आपकी स्क्रीन पे, that is WOMAN, और इसका मतलब होता है वुमन। अब इसको मेरे साथ बोलना है आपको, बोलिए वुमन, वुमन, है ना। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड आपकी स्क्रीन पे आ रहा है WOMEN। अब जिनके पास में हैंड रेज का ऑप्शन है, आप लोग रेज करें हैंड, ताकि हम लोग बात करते हुए आगे बढ़ते हैं। रेज योर हैंड इफ यू हैव दैट ऑप्शन ऑफ रेजिंग योर हैंड। ओके फाइन। सो यहां पर जो दूसरा वर्ड है दैट इज प्लूरल वन। सिंगुलर और प्लूरल का फर्क है यहां पर। हाँ जी सोनू जी, मैंने एक्सेस दिया आपको। यस सर। दूसरा वाला जो वर्ड है सर, क्या कहेंगे इसे? वुमेन, राइट, ठीक है सर, आते हैं अभी इसी पर आते हैं। जस्सू चौधरी, यस, क्या कहेंगे? हेलो। वुमेन, ठीक है, थैंक यू। और इसी के साथ पूर्वा, yes पूर्वा, what can we speak, what can we say? Women. Okay, थोड़ा सा ना इसका जो कंफ्यूजन है वो दूर करते हैं। हमने हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो हमने सुने हैं, लिसनिंग तो किया है, लेकिन लिसनिंग गलत किया है। जैसा सुना है वैसा ही हम बोलते आ रहे हैं, राइट। इसका जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होगा दैट इज वीमेन। अब इसको वी मैन नहीं बोलना है, वी मैन। सरस्वती 1 मिनट, आई एम गिविंग एक्सेस। हाँ सरस्वती, यस, बोलिए प्लीज। हेलो। ओके फाइन, अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, देखो मजा नहीं आएगा ऐसे, अगर आप लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मजा नहीं आने वाला है। मैं चाहता हूँ लाइव क्लास को जिए आप लोग पूरे एंजॉयमेंट के साथ में। हमें इस लाइव क्लास को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ना है, पढ़ना है। अगेन शर्माना नहीं है, झिझकना नहीं है। नो वन इज परफेक्ट हियर, इवन योर टीचर हु इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, जो मैं बैठा हुआ हूं, मुझे भी, मैं खुद बोलता हूं कि मैं परफेक्ट नहीं हूं। हर दिन सीखना पड़ता है। लैंग्वेज एक बहुत बड़े से समुद्र की तरह है, हर दिन गोते लगाने पड़ते हैं इस समुद्र के अंदर। और जब जब हम इसमें डाइव करते हैं, जब जब इस के अंदर जब हम गोते लगाते हैं, तो कुछ नए वर्ड्स निकल के आते हैं, और वही वर्ड्स फिर हम बच्चों को सिखा भी देते हैं, राइट। तो ऐसा शर्माना नहीं है प्लीज, है ना, थोड़ा सा झिझकना नहीं है हमें। आप प्लीज कंटिन्यू करें ना अपने जो भी थॉट्स हैं आपके, आप जो बोलना चाहते हैं। अगेन कमिंग बैक टू दीज वर्ड्स, सो WOMAN होता है वुमन, वुमन, और WOMEN हो जाएगा विमेन। अगर एक से ज्यादा औरतें हैं तो विमेन। कम ऑन, यस बोलो मेरे साथ, विमेन, विमेन, राइट। इसी तरह से वुमन, विमेन, राइट। अब बोल के देखो जरा, वुमेन कैसा लग रहा है, सोच के देखो कैसा, कौन सा वाला प्रोनाउंसिएशन ज्यादा बढ़िया लग रहा है, वुमेन या विमेन? विमेन ज्यादा आपको गुड फील करवाएगा इन टर्म्स ऑफ योर लैंग्वेज। जब आप एज पर लैंग्वेज बात करते हैं तो विमेन हम लोग कंसिडर करते हैं, राइट। इसी तरह से एक वर्ड है BUFFET, जिसको हम ज्यादातर लोग जो हैं वो प्रोनाउंस करते हैं बुफेट, BUFFET, बुफेट। यहां पर इसका जो रियल प्रोनाउंसिएशन है दैट इज बफे, या होता है बुफे। और ये होता क्या है बुफे? इसका मतलब होता है वैरायटी ऑफ फूड, जहां पर अलग अलग वैरायटी के अंदर जब खाना होता है
सर विमेन कैसे होगा, ओ रिप्लेस इन आई? यस यस सोनू, ओ रिप्लेस हो जाएगा आई से। एक्चुअली ये है ना बड़ा आप ये समझे कि फोनिक्स की क्लास का जो पार्ट है, जहां पर हम फोनिक्स सीखते हैं, जहां हम लैंग्वेज की एक्टिविटीज करते हैं, डोंट वरी, मैं करवाऊंगा वन बाय वन, सब सारी चीजें करने वाले हैं हम करेंगे डिटेल के अंदर, डोंट वरी, है ना। विमेन नहीं होगा कुलदीप, विमेन होगा, पूर्वा ने बिल्कुल सही लिखा है विमेन। ओके, सो कमिंग बैक टू बुफे, वेराइटी ऑफ फूड। आप शादी में जाते हैं, अलग अलग स्टॉल्स लगी हुई हैं, बहुत सारी स्टॉल्स हैं, तो वहां स्टॉल्स पे जो खाना है दैट इज बुफे, उसको हम बफे सिस्टम में कंसिडर करते हैं, राइट। तो वेराइटी ऑफ फूड के लिए बफे, नॉट बफेट। बफेट नहीं होगा, बुफेट नहीं होगा, ये होगा बफे या बुफे। विद दिस एक वर्ड आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, HOTEL। ज्यादातर बच्चे इसको होटल बोलते हैं। अगर आप एग्री करते हो मेरी बात से तो यस लिख दीजिए चैट ग्रुप के अंदर। ज्यादातर लोग होटल बोलते हैं, होटल, है ना। वास्तव में होटल नहीं होता है, इसको बोलते हैं होटल, होटल। 1 मिनट, कौन एक्सेस मांग रहा है? 1 मिनट, ओके। तो इसको हम कहते हैं होटल, होटल होगा, होटल नहीं बोलते हैं। आज से होटल बोलना बंद कर देंगे प्लीज, होटल बोलना शुरू करना है, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है आपकी स्क्रीन पे दैट इज, इसको ज्यादातर लोग बोलते हैं रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। अभी फिर यस लिखना अगर आप बोल रहे हैं कि रेस्टोरेंट ही बोलते हैं, और ज्यादातर लोग बोलते ही यही हैं, क्योंकि उनकी लिसनिंग वैसी हुई है, उनकी लिसनिंग वैसी हुई है। एक टूल है प्लास, आप लोगों ने यूज किया होगा अपनी रूटीन लाइफ में, देखा भी होगा, प्लास यूज करते हैं। अब प्लास जैसा कोई वर्ड एक्चुअली होता ही नहीं है, इसको बोलते हैं प्लायर्स। होटल को बोलना है, यस पूर्वा, वेरी गुड, होटल को बोलना है होटल, और रेस्टोरेंट को बोलना है रेस्टोरेंट। क्या बोलना है? रेस्टोरेंट। मेरे साथ बोल के देखिए एक बार, रेस्टोरेंट। आपके इंग्लिश लर्निंग के एक्सपीरियंस को, ये एक्चुअली ट्रायल फेज है इस एप्लीकेशन का, और आई एम इन प्रोसेस टू मेक योर एक्सपीरियंस सीमलेस, आई एम इन प्रोसेस टू मेक योर एक्सपीरियंस वंडरफुल, very learning atmosphere I actually want to give you, and I am in word with some other vendors as well, ताकि हमें ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएं। अभी आप सिर्फ मेरा वीडियो देख पा रहे हैं, आने वाले कुछ ही दिनों में एक फीचर्स ऐसा आएगा जहां पर मैं आपसे लाइव बात करूंगा, आप लोगों के वीडियोस भी देख पाऊंगा, तो हम बिल्कुल ऑफलाइन क्लास जैसा फील करेंगे। तो मैं उसके भी प्रोसेस में हूं, है ना, ठीक है। प्लायर्स हो जाएगा, फिर इसी तरह से रेस्टोरेंट हो जाएगा, रेस्टोरेंट। कोई कहेगा क्या आज से रेस्टोरेंट? चलो आज रेस्टोरेंट पे चलते हैं, खाना खाएंगे। अरे रेस्टोरेंट, रेंट अलग वर्ड है, रेस्ट एक अलग वर्ड है, इस तरह से वर्ड फॉर्मेशन नहीं हुआ करते हैं। चलिए आगे बढ़ रहे हैं इसी के साथ, ये होता है रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। अब अगर आप प्रोनाउंसिएशन पे गौर करना, मैं किस तरह से बोल रहा हूँ। हिंदी में जो लिखा है दैट इज रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। इंग्लिश में जो बोल रहा हूं उसको समझिएगा, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। समझ में आ रही है बोलने का तरीका, है ना। तो इस तरह से हमारी ये क्लासेस रहेंगी जहां पर हम प्रोनाउंसिएशन पे काम करेंगे। नाउ दिस इज योर टर्न, यू ऑल हैव टू रीड दिस अलाउड। आपको ना थोड़ा जोर से बोलना है, जैसे मेरी आवाज बहुत अच्छे से आपको ऑडिबल होगी, उस तरह से आपको थोड़ा सा जोर से बोलना है। और मैं चाहता हूं इस बार मैं एक्सेस देना चाहूंगा सरस्वती मंदार। सरस्वती, कैन आई गिव यू एक्सेस? इफ यू प्लीज रेज योर हैंड, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोगों से मेरी बात हो। अगर मैं बात नहीं कर पाऊंगा तो आपका इस सेशन में आना बर्बाद हो जाएगा, आप बात समझो। ओके, कौन बोलना चाहता है? जो सबसे पहले हैंड रेज करेगा उसी का नंबर आएगा। चलो, यस 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 यस, 1 मिनट। पूर्वा सिंह, पूर्वा 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 1 मिनट। अपार्ट फ्रॉम पूर्वा कौन बोलेगा? चलो पूर्वा, विल कम टू यू, विल कम टू यू। और कौन बोलना चाहता है? निकिता चौधरी, कुलदीप दादीज, सोनू शर्मा, जसू चौधरी। जसू बेटा आप बोलना चाहेंगे प्लीज? हम लोग वी आर लाइक अ फैमिली। आप एक चीज समझो, आप जो बच्चे यहाँ जुड़े हुए हैं या बच्चे नहीं भी हैं, उम्र में हो सकता है बड़े हों, आप कॉलेज के स्टूडेंट हों या फिर वर्किंग प्रोफेशनल हों, वी आर लाइक अ फैमिली।
जब तक आप मेरे साथ एक परिवार की तरह नहीं ढलोगे, मैं आपको इंग्लिश नहीं बुलवा पाऊंगा. एटलीस्ट यू हैव टू स्पीक. नाउ प्लीज स्टार्ट स्पीकिंग. ओके निकिता, आई हैव गिवन एक्सेस टू यू. नाउ यू हैव टू रीड दिस अलाउड. आपको इसको ना थोड़ा सा पढ़ना है अच्छे से, ताकि मैं बहुत अच्छे से आपकी आवाज को सुन पाऊं आपकी स्क्रीन पर. When you go to any restaurant or hotel, हाँ वेरी गुड. व्हेन यू गो टू एनी रेस्टोरेंट और होटल. अब फर्क समझ में आ रहा है आपको? देखो मैं कैसे पढ़ रहा हूँ, मेरा सुनो आप. व्हेन यू गो टू एनी रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट, करेक्ट करो. रेस्टोरेंट और होटल. restaurant. वेरी गुड, वेरी गुड. तो ये निकिता आपको पता था क्या पहले से कि रेस्टोरेंट नहीं होता है, रेस्टोरेंट होता है? No, sir. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बिटू जो हमें पता नहीं है, क्योंकि हमारी लिसनिंग ऐसी हुई, हमने जैसा सुना है वैसा ही हम बोलते आ रहे हैं, है ना. अभी टाइम लिमिटेशन है तो थोड़ा थोड़ा मैं फास्ट इस सेशन को कंटिन्यू करूंगा. मैं चाह रहा था सरस्वती से बात हो मेरी. जस्सू अगर आप भी बोल पाते तो बहुत बढ़िया रहता, और मैं चाह ही रहा था कि आप लोग बात करें, बट ठीक है, इट्स ओके. अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं कोई बात नहीं, इट्स ओके. विल कम टू अनदर स्लाइड ऑन योर स्क्रीन. एक वर्ड लिखा है मैंने यहाँ पर. आप में से कोई भी एक बच्चा इस वर्ड को प्रोनाउंस करके बोल सकता है. एनी वन? जस्सू. यस जस्सू चौधरी. बेटा आप कहाँ से हो? चलो हम ना पहले थोड़ी सी बात करते हैं. कहाँ से हो आप? हेलो जस्सू चौधरी. हेलो. हाँ जी बेटा, कहाँ से हैं आप? बेगना से. आप बेगाना से हो. वेरी गुड. और कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? हम नर्सिंग कर चुके हैं. नर्सिंग कर चुके हो. ओके वेरी गुड. तो आपको ये इसका कहाँ से मिला? इसका एप्लीकेशन का कहाँ से पता चला आपको? हमारे ऑफिस सर पढ़ाते थे. ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है ठीक है. तो ना एक रिक्वेस्ट रहेगी. हम लोग है ना एक फैमिली की तरह हैं यहाँ पर सभी, ठीक है. मैं आप लोग चाहें तो मुझे ना एज एन एल्डर ब्रदर कंसिडर कर सकते हैं. बड़े भाई से बात करने में तो कोई झिझक होती नहीं है, राइट? नहीं सर. मैं पूरी कोशिश करूंगा. जस्सू आपका एक्चुअल नेम क्या है? जस्सू नाम है और क्या नाम है आपका? जसोदा चौधरी. जशोदा चौधरी, ठीक है. तो ऐसा है कि मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको एक फैमिली लाइक एटमोस्फेयर जैसा हमारे घरों में होता है, उसी तरह से हम लोग एटमोस्फेयर को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है. और ये जो शर्म और जो झिझक वाले जो भाव, सभी से बात कर रहा हूँ, सभी सुनना. ये जो यहाँ पर जो शर्म वाली शंका वाले जो भाव है ना, इनको यूं निकालो और अपने पास में मम्मी भाई जो भी बैठे हुए ना उनको दे दो, और बोल दो कि हे शर्म, हमें तेरी जरूरत नहीं है, तू चली जा यहाँ से. हमें शर्म नहीं करनी है, हमें बोलना है. गलत भी बोल रहे हो तो बोलो. अरे टूटी फूटी इंग्लिश आती है तो भी बोलो. कौन सुन रहा है यहाँ? सारे जितने जो लर्नर है वो सारे वही हैं जिनको टूटी फूटी आती है. अभी ठीक है, कंफर्टेबल हो जाओगे सभी आपस में. ओके सर. हाँ वेरी गुड, थैंक यू जसू. सो जशोदा, ये जो वर्ड लिखा है आपकी स्क्रीन पर, ये वर्ड क्या है? इसे कैसे प्रोनाउंस करते हैं हम? व्हाट. व्हाट. वेरी गुड, ठीक है, शाबाश. और कोई है जो बात करना चाहेगा? एनीवन एल्स? सरस्वती, आप प्लीज बोलना चाहेंगे अभी? एनीवन एल्स हु वांट्स टू स्पीक? ओके पूर्वा. यस 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 माय डियर पूर्वा. यस सर. कैसे पढ़ते हैं इसको? WHAT. व्हाट. व्हाट. वेरी गुड. अब ना आपकी स्क्रीन पे मेरे जो लिप्स हैं इनकी मूवमेंट को देखो आप. एक तो मैं बोलता हूँ वट, एक मैं बोलता हूँ व्हाट, व्हाट. आपके जो लिप्स हैं वो ओ शेप में मूव होते हैं. व्हाट, व्हाट, है ना? तो इसको व्हाट नहीं पढ़ेंगे आपसे. क्या नहीं पढ़ना है? व्हाट. हाँ व्हाट नहीं पढ़ना है, हम पढ़ेंगे व्हाट. अब एक सेंटेंस आया है आपकी स्क्रीन पर. व्हाट इज देयर? वहां पर क्या है? व्हाट इज देयर? वहां पर क्या है? दैट. दूसरा वर्ड है दैट. इसको दैट ऐसे नहीं बोलना है, बोलना दैट. क्या बोलना है? दैट.
सोनू जी आ रहा हूँ आपके पास, 1 मिनट। वन बाय वन सभी को एक्सेस रहेगा। हाँ सोनू जी, क्या बोलेंगे इसको? That. दैट, वेरी गुड। तो इसको दैट बोल के हमें प्रोनाउंस करना है, और दैट से जो सेंटेंस बनेगा, दैट इज अ पेन। Pen. दैट इज अ पेन, वो एक पेन है। इसी तरह से एक वर्ड है WHERE, इसे क्या पढ़ते हैं? Where. इसको सही मायने में हम पढ़ते हैं वेयर। क्या पढ़ते हैं? Where. वेयर, वेयर, राइट। और अब से अब तक अगर किसी ने वेयर पढ़ा हो, वेयर, तो फर्क देख लें। वेयर, 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 फर्क महसूस हो जाएगा आपको जब आप इसको इस तरह से बोलेंगे, इस तरह से सुनेंगे। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ सरस्वती, कहाँ से हैं आप? हेलो, जी सर। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? लोकल नागौर से हैं क्या आप? नहीं सर, जाट से। कहाँ से बताया आपने? सॉरी। जाट से सर। ओके ओके ओके, फाइन, ठीक है, हाँ। ठीक है। आवाज अच्छे से आ रही है? आपको समझ आ रहा है ना मैं जो करवा रहा हूँ? ये सर समझ आ रहा है ना। अगर कहीं भी किसी भी स्टूडेंट को लगे ना कि सर आप फास्ट करवा रहे हो, तो आप प्लीज बता देना। अगर कोई कुछ नहीं समझ में आए तो भी बताना आप मुझे। चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं इसी के साथ, थोड़ा सा फास्ट मूव करेंगे अभी। वेयर इज माई कार, मेरी कार कहाँ है? अब समझना, वेयर, 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 वेयर की जगह वेयर यूज करना है। वेयर इज माई कार, वेयर इज माई कार। इसी तरह से हो जाएगा वेयर इज माई पेन, वेयर इज माई पेन, मेरा पेन कहाँ पर है? वेयर इज माई पेन। अब बहुत बार ऐसा होता है, मॉर्निंग में जल्दी जल्दी में तैयार होते हैं तो ना, कई बार आपका मोबाइल नहीं मिल रहा होता है, कई बार गाड़ी की चाबी नहीं मिल रही होती है, तो आप बोलते हैं मेरी चाबी कहाँ है गाड़ी की, मेरा पेन कहाँ पर है ना, मेरे जूते कहाँ पर हैं। तो अभी इंग्लिश में धीरे धीरे बोलना शुरू करना है। वेयर इज माई पेन, वेयर इज माई कार्स की, कार की चाबी कहाँ है? कार्स की, वेयर इज माई कार्स की। तो वेयर, नॉट वेयर, वेयर नहीं बोलना है, वेयर। इसी के साथ नेक्स्ट वाई, WHY, वाई। वाई आर यू सैड, आप दुखी क्यों हो? वाई आर यू सैड। वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो? वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। अब देखिए, ये जो वर्ड थे व्हाट, वाई, वेयर, इनमें आपके लिप्स की शेप ओ शेप में आती है, तो इनको वाई, वेयर, जो वट बोला था स्टार्टिंग में किसी ने, है ना, वो नहीं बोलना है हमें। विद दिस वाई हो गया हमारा, ये हमने किया, ठीक है। वर्क दैट इज इजी टू डू, अगेन ऐसा कोई काम जो इजी है करने के लिए, दैट इज इट्स अ पीस ऑफ केक। इंग्लिश बोलना, आप में से किन किन को लग रहा था कि इंग्लिश बोलना मुश्किल है? बोलना मुश्किल नहीं है, बोलना मुश्किल नहीं है, लेकिन सही इंग्लिश बोलना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, थोड़ा सा, इतना सा, थोड़ा सा मुश्किल लगता है सही इंग्लिश बोलना, लेकिन मुश्किल नहीं है। इट इज वेरी इजी, इट्स अ पीस ऑफ केक। हर वो काम जो आसान है आपके लाइफ में करने में बहुत इजी होता है, दैट इज पीस ऑफ केक, इट्स अ पीस ऑफ केक। इसी तरह से वर्क दैट इज कंपल्सरी, कोई काम है जो बहुत जरूरी है, जो करना ही करना है, जो करना ही चाहिए आपको, उसके लिए हम बोलते हैं इट्स अ मस्ट, MUST, इट्स अ मस्ट। मस्ट यानी कि जरूरी है, कंपल्सरी है, करना ही चाहिए। तो अब आप मुझे बताइए, लर्निंग इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश इट्स अ पीस ऑफ केक, राइट। लर्निंग इंग्लिश इट्स अ मस्ट, ये मस्ट भी तो है, कंपल्सरी भी तो है। इसी तरह से एक वर्ड आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, AISLE, इस वर्ड को क्या पढ़ेंगे आप? एनीवन, रेज योर हैंड। ओके, कोमल इज देयर, पूर्वा, ओके। Apart from Purva, anyone else who wants to speak? Yes, Purva. What is this? Ale. Sorry? Ale. Okay, very good. और ये होता क्या है? Do you know that?
No, sir. ओके फाइन, 1 मिनट। सोनू जी, आपको क्या लगता है क्या लिखा हुआ है स्क्रीन पर? AISLE, असली, एसल एसल, 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 है ना? ये लग रहा है आपको? कोई बात नहीं सर, अभी डाउट दूर करते हैं। ये ना एक नया वर्ड है, ज्यादातर जहां तक मेरा अनुमान है आप लोगों ने सुना ही नहीं होगा। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ ये एक्चुअली होता क्या है। यस 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 सरस्वती, 1 मिनट। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको? ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा टाइम जाएगा, इट्स ओके। मैं खुद बता रहा हूं, ये है एसल नहीं है, ये असली नहीं है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना अभी, एक वर्ड मैंने आज तो खैर नहीं बताया, एक वर्ड है आइलैंड, अगर आपको पता हो, ISLAND। आई के बाद एस अगर आता है तो एस साइलेंट हो जाता है, ये हमें ध्यान में रखना है। कहीं भी आई के बाद अगर एस आता है वो एस साइलेंट हो जाता है। तो यहां पर अगर एस साइलेंट होगा तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन बनेगा दैट इज आयल, आयल। ठीक है, और इस आयल का मतलब होता है ओपोजिट। किसका ओपोजिट? आप लोग बहुत बार ट्रेन में, बस में, एरोप्लेन्स के अंदर जब यात्रा करते हैं तो आप लोग किसी एक तरह की सीट को बहुत प्रेफर करते हैं, है ना? एक तरह की सीट बड़ी अच्छी लगती है, विंडो सीट, है ना? तो ये विंडो सीट का ओपोजिट होता है जिसको बोलते हैं आयल। आयल का मतलब होता है ये जो दो तरफ जो विंडोज की जो सीट्स की जो रोज होती हैं, दोनों तरफ के जो कॉलम होते हैं सीट्स के, उनके बीच का जो गैप होता है ना पैदल आने जाने के लिए, जहां पर आप वॉकिंग करते हैं, ट्रेन के अंदर भी एक गैप रहता है ना? वो गैप जो दोनों तरफ की सीट्स के बीच में होता है, दैट गैप इज कॉल्ड आयल, उसको कहा जाता है, इट्स एन आयल। अंडरस्टूड? अभी सबको पता चल गया कि आयल एक्चुअली होता क्या है। तो सीट्स दो तरह की होती हैं, वन इज दैट यू लाइक टू सिट ऑन, कौन सा वाली? विंडो सीट, जो विंडो सीट आपको पसंद भी होती है, राइट? और वहीं दूसरी तरफ जो सीट होती है, एक सीट होती है आयल सीट। आयल, आयल सीट का मतलब होता है विंडो के ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि दूसरी तरफ वाली सीट जिसके बीच में से रास्ता जाता है लोगों के आने और जाने के लिए, राइट? इवन आई हैड नॉट लिसन इट। यस, पूर्वा नहीं सुना होगा बेटो, बिकॉज देखो स्पोकन इंग्लिश का मतलब ही यही है कि हम हर वो चीज यहाँ पे सीखेंगे जो आपने आज तक नहीं की है, राइट? बुकिश वर्ड में बहुत फर्क है। आपकी बुकिश लैंग्वेज आपके स्पोकन में यूज बहुत रेयर होती है ना? तो हम यहाँ ये जो लिखा है सोनू जी, आपने इसको रिलेट कर सकते हैं, बट इसका और इसका फिर भी फर्क रहेगा, थोड़ा सा फर्क रहेगा। हम नेक्स्ट जब सेशंस में आगे बढ़ेंगे तो मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। इसी तरह से इसमें एस जो है वो साइलेंट है, एस इज साइलेंट। कमिंग टू द नेक्स्ट वर्ड दैट इज PREFER। अब बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं प्रीफर, बहुत सारे लोग इसको बोलते हैं प्रेफर। आप क्या बोलते हैं, कौन सा सही है? प्रीफर सही है या प्रेफर सही है? एनीवन कैन रेज हिज और हर हैंड। ओके, सोनू शर्मा, यस यस यस, 1 मिनट। हाँ जी, रेफर नहीं, रेफर नहीं है सर, पी साइलेंट नहीं रहेगा यहाँ पर। ठीक है, पूर्वा? Sir, I pronounce it prefer. प्रीफर, ओके, फिर से बोलो जरा एक बार। Prefer. प्रीफर, राइट, ठीक है। एनीवन एल्स? निकिता, सरस्वती और बाकी जो स्टूडेंट्स यहाँ जुड़े हुए हैं, एनीवन? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैं बता रहा हूं आपको, इसको ना हम पढ़ते हैं प्रीफर, ना ही इसको हम पढ़ते हैं प्रेफर। ये होता है प्रीफर, 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 राइट? प्रीफर का मतलब होता है जिस चीज को आप प्राथमिकता देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप मेरे घर आए, मेहमान हो, गेस्ट आए, मैंने कहा व्हाट वुड यू लाइक टू प्रेफर? व्हाट वुड यू लाइक टू प्रीफर या प्रीफर? प्रीफर, है ना? तो आपने कहा आई लाइक टू हैव सम मिल्क, और या फिर आप कहेंगे आई प्रेफर मिल्क टू कॉफी, कि मैं मिल्क टू टी, कि मैं चाय की जगह जो है दूध लेना पसंद करूंगा, चाय को मैं नहीं चाहता हूं, मैं मिल्क लेना पसंद करूंगा, मैं प्रीफर करूंगा मिल्क को लेना। तो इसके लिए वर्ड आएगा प्रीफर, प्रीफर। एक बार बोलिए सभी, प्रीफर। आई प्रेफर
बोलना है मेरे साथ, देखना नहीं है। आई प्रिफर मिल्क टू टी, आई प्रिफर मिल्क टू टी, इस तरह से बोलकर आपको प्रैक्टिस करनी है। विद दिस एक वर्ड आ रहा है आपके स्क्रीन पर अभी, ये वर्ड आपने बहुत बार देखा होगा, बहुत बार सुना भी होगा। ये वर्ड क्या है, इस वर्ड के मतलब क्या है, देखिए जरा। एनीवन? ओके, इस वर्ड को हम पढ़ते हैं डेब्री, डेब्री। ज्यादातर बच्चे इसको डेब्रिस, डेब्रिस बोलते हैं या डेब्रीज, ज की आवाज आती है डेब्रीज, बट ये एक्चुअली होता है डेब्री। 1 मिनट। यस पूर्वा? Sir, we pronounce it debris. डेब्री, डेब्री, वेरी गुड, दिस इज द करेक्ट वन। हाउ टू? यस कुलदीप? Yes, sir. Debris. It is right pronunciation. Debris. Yes, Yeah. yes. This is the correct way to pronounce this word, debris. और debris का मतलब होता है मलबा। जब भी कहीं पर भूकंप वगैरह आता है तो जो बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, उनके जो ढेर लग जाते हैं, उनके जो मलबा होता है, उसको डेब्री हम कहते हैं। ठीक है, विद दिस आगे बढ़ रहे हैं। एक वर्ड आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, इसको क्या कहते हैं? कुलदीप आपसे स्टार्ट करते हैं, बिकॉज यू हैव एक्सेस राइट नाउ। Buffalo. बुफेलो, ठीक है। एनीवन एल्स? निकिता चौधरी, सरस्वती, क्या कहेंगे इस वर्ड को? ये वो वर्ड उठाए हैं मैंने जो देखो हमारी रूटीन लाइफ के हैं, ये हमारी आम बोलचाल की भाषा के शब्द उठाए हैं। हाँ निकिता, क्या कहेंगे इसे? buffalo, बफेलो। 2 वर्ड आए हैं, एक आया है बुफेलो, एक आया है बफेलो। गौर करना। यस पूर्वा? So we pronounce it buffalo. Buffalo, very good. This is the correct way how we pronounce this word. So ये होगा buffalo, buffalo, not buffalo, not buffalo. ये Buffalo. होगा buffalo, buffalo, right? Yes, sir. अब एक चीज गौर कीजिए, आपको बुफेलो किसने सिखाया? स्टार्टिंग स्कूल से में। जो सुना, जो आपने सुना स्टार्टिंग से, वो आपके माइंड में सेट, करेक्ट? तो आज से लिसनिंग पे ध्यान देना है, गुड लिसनर्स को सुनना है, जहां से आपको सही शब्द सही तरह से सुनने के लिए मिले, वो आपको करना है। तो हम आज लिसनिंग की बात कर रहे हैं पूरे के पूरे सेशन में कि लिसनिंग कहां से करनी है। नेक्स्ट, आई हैव अ बफेलो, आई हैव अ बफेलो। अब आई हैव का मतलब होता है मेरे पास है, जो आपके पास है, दैट यू हैव, आपके पास है। अब अगर आपको कहना है कि मेरे पास एक गाय है, तो आप क्या कहेंगे बताइए? आपके पास एक गाय है, गाय, गाय को इंग्लिश में बोलते हैं काऊ, COW, काऊ। तो अब बताइए आप क्या कहेंगे? यस निकिता? I have a cow, आई हैव अ काऊ, Cow. इसी तरह से, वेरी गुड, आई हैव अ काऊ, गुड। एनीवन एल्स? ओके फाइन। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, मैन और मैन। यहां पर भी फर्क है। मैन होता है एक आदमी, अकेले व्यक्ति के लिए जब आप बात करते हैं तो आप बोलते हैं मैन। और हाँ पूर्वा, क्या हुआ बेटू, क्यों एक्सेस? हैंड रेज करो बेटा, इफ यू वांट टू से समथिंग देन प्लीज रेज योर हैंड। ओके फाइन, इट्स ओके। सो एक होता है मैन और एक होता है मैन, यहां पर फर्क है। यस पूर्वा? So I have no problem. ओके फाइन फाइन, थैंक यू। ओके, सो विद दिस, मैन होता है एक आदमी के लिए, और जो मैन है दूसरा वर्ड, वो आता है मल्टीपल लोगों के लिए। फॉर एग्जांपल, एक से ज्यादा अगर आदमी है तो वहां पे मैन वर्ड का यूज किया जाता है ना? जैसे मैन इज गोइंग, आदमी जा रहा है, मैन इज गोइंग, आदमी जा रहा है। अब वहीं अगर कोई लड़की जा रही है तो क्या कहेंगे? गर्ल इज गोइंग। लड़का जा रहा है तो क्या कहेंगे? बॉय इज गोइंग, राइट? कार जा रही है तो क्या कहोगे? कार इज गोइंग। बस जा रही है तो क्या कहोगे? हाँ हाँ, वेरी गुड, बस इज गोइंग, वेरी गुड, यही कहेंगे। इसी तरह से हो जाएगा मैन। मैन का मतलब होता है आदमी, आदमी जो एक से ज्यादा है ना? तो जब ज्यादा के लिए बात कर रहे हैं तो आर गोइंग, अगर कोई एक व्यक्ति जा रहा है तो इज गोइंग,
है ना। तो बहुत सारे लोग हैं या दो से ज्यादा लोग हैं, 2 या 2 से ज्यादा, तो वहां पर वर्ड यूज करते हैं मैन, और मैन आर गोइंग का मतलब होता है आदमी जा रहे हैं, आदमी जा रहे हैं। ठीक है। आई हैव अ काउ, मंदार, सरस्वती मंदार, आई हैव अ काउ, वेरी गुड। आई हैव अ काउ, गुड। बस इज गोइंग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बच्चे जा रहे हैं, बताओ क्या लिखोगे? बच्चे जा रहे हैं, बोल के लिखना है। ये मैं नहीं चाहता कि आप लोग ना सिर्फ टाइपिंग की प्रैक्टिस करें, इट इज नॉट लाइक दैट, आपको बोलना है मेरे साथ। अब बच्चों को इंग्लिश में बोलते हैं चिल्ड्रन, तो बच्चे जा रहे हैं के लिए वर्ड आएगा चिल्ड्रन आर, 1 मिनट, यस निकिता। Students are going. अब ना एक गलती और करते हैं हम, ये जो चिल्ड्रंस आपने बोला है, चिल्ड्रंस नहीं बोलना है, बोलना है चिल्ड्रन, 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 राइट। Children. हाँ, चिल्ड्रंस नहीं होता, एस और एस यहां नहीं लगेगा बेटू। देखो, चाइल्ड सिंगुलर है, सिंगल बच्चा है तो चाइल्ड हो जाएगा, एक से ज्यादा बच्चे हैं तो चिल्ड्रन हो जाएगा। इस तरह से इसका हम फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ओके। सो चिल्ड्रन आर गोइंग, वेरी गुड सरस्वती, चिल्ड्रन आर गोइंग यहाँ पर हो जाएगा। विद दिस, इसी की तरह आगे बढ़ रहे हैं। एक वर्ड है बैड और दूसरा वर्ड है बेड, इनमें भी फर्क है। एक बैड होता है कि बुरा, है ना, बैड का मतलब बुरा, और दूसरा वाला जो बेड है ये आपका बिस्तर है जिस पर आप सोते हैं, राइट। देखते हैं किस तरह से। कोई लड़का है जो बहुत बुरा है, वो हर टाइम है ना बहुत ऐसे बुरे बुरे काम ही करता है, राइट। तो कहेंगे ही इज सो बैड, ही इज सो बैड, वो बहुत बुरा आदमी है, वो बहुत बुरा लड़का है, ही इज सो बैड, है ना। इसी तरह से इट इज माई बेड, इट इज माई बेड, ये मेरा बेड है, ये मेरा बिस्तर है। अब इसको बोलने का तरीका देखो, बी ए डी बैड, बी ई डी बेड, बी ए डी बैड, बी ई डी बेड, करेक्ट। आगे बढ़ रहे हैं इसी के साथ। नेक्स्ट स्लाइड है लैंड और लैंड, इन दोनों में भी फर्क है। आप में से कोई मुझे बता सकता है इनमें फर्क क्या है, लैंड और लैंड? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ द वर्ड्स, लैंड एंड लैंड? एनीवन? Yes, Purva. What is the difference between both the words? Purva, 1 minute. I will come to you. 1 minute. 1 minute. 1 minute. Komal, you please raise your hand once again. I will come to you, Kuldeep. Will come to you. Komal, raise your hand. I want to hear something from you. Okay. Yes, Kuldeep. What is the difference between both the words? लैंड का मतलब सर जमीन होता है, और लैंड यानी उधार देना। Hello. लैंड, हेलो, वेरी गुड। लैंड और लैंड, हाँ, यस यस यस, मैंने सुना आपने जो, है ना। अगेन कोमल, हेलो कोमल, आवाज आ रही है आपको? हेलो सर। हाँ कोमल, इनका यूज कैसा करते हैं पता है बेटा आपको, लैंड और लैंड? यस सर। ठीक है, वेरी गुड। अभी एक बार ना मैं 2 एग्जांपल से आपको बता रहा हूं, एक साथ सभी देख लेंगे 2 एग्जांपल के साथ में। दिस इज माई लैंड, ये मेरी जमीन है, दिस इज माई लैंड। और इसी तरह से लैंड मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे उधार दो, लैंड मी सम मनी। तो लैंड हो जाएगा उधार देने के लिए, और लैंड हो जाएगा जमीन के लिए, है ना। इसी तरह से नेक्स्ट आपकी स्लाइड आ रही है, सैंड और सेंट, इनमें भी फर्क है। सैंड का मतलब होता है मिट्टी, और सेंट का मतलब होता है भेजना। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई सैंड, ये मेरी मिट्टी है। आपके घर के बाहर मिट्टी पड़ी है कहीं पर, सैंड है बहुत सारी, राइट। तो आप बोलते हैं कि ये मेरी मिट्टी है, दिस इज माई सैंड। और इसी तरह से सेंड मी सम मनी, सेंड, सैंड और सेंट, इन दोनों में भी फर्क है। इसी तरह से नेक्स्ट स्लाइड पर आ रहे हैं। ये बैड बड़ा बेकार है, कोई बैड है जो बहुत बेकार है, बड़ा बेकार बैड है, इंग्लिश में क्या कहेंगे? सोचिए जरा, क्या कहेंगे इंग्लिश में? व्हाट डू वी से इन इंग्लिश? हम कहते हैं दिस बैड इज वेरी बैड, दिस बैड
is very bad. This bed is very bad. एक बार बोल के देखिए खुद से. This bed is very bad. Very good. थोड़ी मिट्टी भेजो मुझे. थोड़ी मिट्टी भेजो मुझे. क्या कहोगे इंग्लिश में? थोड़ी मिट्टी, some sand. थोड़ी मिट्टी के लिए वर्ड जो यूज होंगे वो होंगे some sand, है ना. भेजने के लिए sand और मुझे के लिए me, तो ये हो जाएगा send me some sand, है ना. यहाँ पर स्पेलिंग एक्चुअली एरर है, ये SAND है लास्ट में, मिस स्पेल्ड हुआ है यहाँ पर. send me some sand. इसी तरह से ये हो गया. एक वर्ड आपकी स्क्रीन पर आ रहा है जो अभी आप देख रहे हैं, सुना भी होगा, यूज भी किया होगा, बोला भी होगा बहुत बार. ज्यादातर लोग इसको पढ़ते हैं प्लम्बर. प्लम्बर ज्यादातर लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं. इसका जो एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होगा दैट इज प्लमा. प्लमा, प्लम्बर नहीं पढ़ना है, प्लमा. ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान में रखना है. आपको स्लाइड्स PDF अवेलेबल हो जाएंगे एप्लीकेशन पर थोड़ी देर में. ठीक है. आई नीड अ प्लम्बर, मुझे एक प्लम्बर की जरूरत है. आई नीड अ प्लम्बर, है ना. अब ये प्लम्बर कौन होते हैं? जो आपके घर पे जो वाटर सप्लाई का जो काम होता है, जितने भी जो पाइपलाइंस वगैरह रहते हैं वाटर सप्लाई के, उनकी जो रिपेयरिंग वगैरह का जो काम करते हैं, दैट पर्सन इज कॉल्ड अ प्लम्बर. ओके. विद दिस आई नीड अ डॉक्टर. आई नीड अ डॉक्टर. अब जिस चीज की आपको जरूरत होती है उसके लिए वर्ड यूज करते हैं आई नीड. आई नीड का मतलब होता है मुझे जरूरत है. आई नीड, मुझे जरूरत है. इन द सेम वे एक वर्ड आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, मैं चाहूंगा आप लोग बताएं मुझे कि ये क्या है. एंड व्हाट डू वी कॉल दिस? हम इसको क्या बोलते हैं? क्या बोल के इसको प्रोनाउंस करते हैं? एनीवन? निकिता, कुलदीप? ओके फाइन. सो दिस इज बॉम्ब. ज्यादातर लोग बोलते हैं बॉम्ब. बॉम्ब, ब नहीं है, बॉम्ब नहीं करना है, इसको बोलना है बॉम्ब. बॉम्ब का मतलब होता है वही जो फट जाता है, जो ब्लास्ट हो जाता है, राइट. बॉम्ब. और नेक्स्ट वर्ड सेंटेंस है इसी का. आई हैव मेड अ बॉम्ब. मैंने एक बॉम्ब बना लिया है. आई हैव मेड अ बॉम्ब. एक बॉम्ब बना लिया है, चलो चल के फोड़ते हैं किसी के घर के ऊपर, है ना. आई हैव मेड अ बॉम्ब. हेलो कुलदीप. हेलो, एम आई ऑडिबल? यस सर, बॉम्ब भी बोलते थे, राइट. बॉम्ब भी बोलते थे. हाँ, तो अब से इसको ना, ये लिसनिंग का चैप्टर इसलिए लिया है क्योंकि हमें सिर्फ इंग्लिश बोलने से मतलब नहीं है. हमें इंग्लिश बोलना है करेक्ट मैनर में. बिल्कुल हमारी लैंग्वेज जो है ना वो बहुत फिल्टर्ड होनी चाहिए, बहुत पॉलिश्ड लैंग्वेज होनी चाहिए हमारी, राइट. ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं इसी के साथ. आई हैव मेड अ मिस्टेक. अब यहाँ ना थोड़ा सा सेंटेंस का फॉर्मेशन समझे. आई हैव मेड, मैंने बना लिया है ना. आई हैव मेड ए बॉम्ब का मतलब हो गया मैंने एक बॉम्ब बनाया है, बॉम्ब बना लिया है. आई हैव मेड अ मिस्टेक का मतलब ये नहीं होगा कि मैंने एक मिस्टेक बना ली है. हम मिस्टेक को बनाते नहीं है, हम मिस्टेक को करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो मेड आ रहा है इसका मतलब बदल जाएगा. इसका मतलब होगा मैंने एक मिस्टेक कर दी है. आई हैव मेड अ मिस्टेक. इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है COMB. एवरीडे हम लोग यूज करते हैं. इसको क्या कहते हैं कुलदीप? कॉम. कॉम. इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है कॉम. कॉम, राइट. आई यूज अ कॉम. मैं एक कॉम इस्तेमाल करता हूं, यूज करता हूं. इसी के साथ रोल ऑफ सिलेबल pronunciation. When we talk about pronunciation, लेबल बनाते हैं. सिलेबल का मतलब होता है कि कौन से वर्ड को हम कहाँ से तोड़ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल एक बड़ा सा वर्ड होता है, बड़ी सी स्पेलिंग रहती है, तो उसको हम तोड़ कहाँ से रहे हैं ना, बीच में जो ब्रेक पॉइंट जो उसका रहता है, जहां से हम दो टुकड़े करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ सिलेबल. हमने अब तक सिर्फ शब्दों को तोड़ा है, उनके सिलेबल नहीं समझे कि उनको तोड़ना होता कैसे है, तोड़ने का तरीका क्या होता है, वो आज यहाँ पर हम देखने वाले हैं. एक वर्ड फ्लैश हो रहा है आपकी स्क्रीन पर. क्या वर्ड है ये? वेजिटेबल. कुलदीप? वेजिटेबल. एनीवन एल्स? वेजिटेबल. एनीवन एल्स? कोमल, निकिता, सरस्वती, एनीवन कैन ट्राई. वेजिटेबल के अलावा क्या कहेंगे इसको? यस कोमल?
हेलो। हेलो सर। हाँ बेटा, क्या कहेंगे इसे, क्या पढ़ते हैं? VEGETABLE, वेजिटेबल। वेजिटेबल। ठीक है। तो लगभग बच्चों का मतलब, क्योंकि हमने सुना ही है, देखो आज के हमारे चैप्टर का जो टॉपिक था वो ये था कि लिसनिंग एंड स्पीकिंग, सुनना क्या है, बोलना क्या है ना। आज से आज तक जो आपने वेजिटेबल, क्योंकि हमने टेबल एक वर्ड पढ़ा हुआ था बचपन से, टेबल, TABLE, तो टेबल को कर दिया अलग और वेजी को कर दिया अलग। वेजी जैसा कोई वर्ड एक्चुअली होता ही नहीं है। ये वेजी, ये वो वाला वेजी नहीं है जो होता है, ये वो वेजी नहीं है। इसको भी पढ़ने का तरीका है, वेजिटेबल नहीं होता है। देखो एक बार फिर से, आपकी जो स्लाइड आ रही है ना, वेजी और टेबल, इस तरह से इसके पार्ट्स नहीं होते हैं। इसका सही तरीका है वेजिटेबल। वेजिटेबल VEG से बनता है वेज, ठीक है। और ईटेबल जो दिख रहा है आपको, वेज ईटेबल, ETABLE, वेज के बाद में ईटेबल। ईटेबल का मतलब होता है खाने योग्य, वेज का मतलब होता है शाकाहारी, यानी कि शाकाहारी जो चीज खाने योग्य है, दैट इज वेज ईटेबल। और ई यहाँ पे हो जाता है साइलेंट, तो ये बनेगा वेजिटेबल। बोलेंगे वेजिटेबल, क्या बोलेंगे? वेजिटेबल। बोलिए सभी एक साथ, वेजिटेबल। वेरी गुड। विद दिस एक वर्ड हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, कौन पढ़ के बताएगा क्या है ये? एनीवन? सरस्वती, मैं चाहूंगा आप बता दो इस बार, प्लीज रेज योर हैंड। निकिता, कुलदीप, ओके फाइन, ओके। सो आज से आज तक अगर आपने कहीं पर सुना हो, ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। यस सरस्वती। बायोलॉजी। सॉरी, बायोलॉजी सर। बायोलॉजी, ठीक है, बिल्कुल सही है, आपने सही सुना है। मैं चाहूंगा निकिता से सुनना चाहूंगा। निकिता, यस, क्या पढ़ेंगे इसको? बायोलॉजी। यस यस, बायोलॉजी, ठीक है। ये कुछ कहना थे आप, आपकी है? ओके, ठीक है, थैंक यू। इसको बायोलॉजी नहीं पढ़ेंगे। ओके 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 ओके, थैंक यू। एक एरर शो हुआ था यहाँ पर, तो मुझे लगा शायद। पूर्वा, व्हाई आर यू नॉट एबल टू हियर मी बेटा फ्रॉम, बिकॉज एवरीथिंग इज फाइन फ्रॉम माय साइड, वर्किंग वेरी वेल। I got an error on my laptop screen, but now it is cleared itself. Okay. ठीक है। Purva, now are you able to understand? Are you able to listen me? Because everything is fine. Even other students are able to hear me very clearly. They can hear. Okay. So ये जो वर्ड था यहाँ पर बायोलॉजी नहीं है, हमने इसको बायोलॉजी बनाया है। इसका एक्चुअल जो फॉर्मेशन होता है, एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन होता है, दैट इज बायोलॉजी। बायोलॉजी, तो इसको आज से बोलेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी, बायोलॉजी नहीं होगा, है ना, बायोलॉजी। बायो नाम की कोई चीज है, ऐसा लग रहा है जैसे आगे वाले को दे रहे हो, बायोलॉजी, बायोलॉजी, है ना, तो वो नहीं है। इसी तरह से एक वर्ड है साइकोलॉजी, ज्यादातर लोग इसको बोलते हैं साइकोलॉजी, यानी कि साइको नाम की कोई चीज है, वो भी ले लो जी, साइकोलॉजी नहीं, ये होगा साइकोलॉजी। इसको बोलते हैं साइकोलॉजी। मेरे साथ बोल के देखिए, बोलो साइकोलॉजी, साइकोलॉजी, राइट, तो ये साइकोलॉजी हो जाएगा। इसी तरह से सोशियोलॉजी, ज्यादातर लोग बोलते हैं सोशियोलॉजी, सोशोलॉजी, है ना, ऐसा लग रहा है जैसे 100 रुपए के नोट दे रहे हैं, सोशोलॉजी नहीं, इसको बोलते हैं सोशियोलॉजी। किस तरह से प्रोनाउंस करते हैं? सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी, तो ये इसका सही प्रोनाउंसिएशन रहेगा। इसी तरह से एक और वर्ड बता रहा हूँ। ओके, आज का कोटा पूरा हो गया, आज हम इतना ही बता रहे हैं। थैंक यू की स्लाइड आ गई है इसी के साथ। विद दिस, एनीवन, इफ यू हैव एनी डाउट, किसी को कोई डाउट है जितनी चीजें आज हमने की हैं उनमें से, तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, अदरवाइज एक रिव्यू करते हैं और फिर आज का सेशन एंड करते हैं। यस, किसी को कोई डाउट है, कोई कुछ कहना चाहता है? क्या मैं आज आप लोगों से थोड़ी थोड़ी बात कर लूं? एक मिनट थोड़ी थोड़ी बात करें। सरस्वती, पूर्वा, तो आप मेरे स्टूडेंट ही हो, आई नो वेरी वेल।
एंड निकिता, कोमल, कुलदीप, ठीक है. Just a minute. Yes, I have no doubt. Purva, thank you that you don't have any doubt. Okay, Nikita Chaudhary, ठीक है. Thank you for giving me your confirmation. Please raise your hands one by one so that I can talk to you all. सभी हैंड रेस रिक्वेस्ट सभी रेज कर दें. मैं एक्सेस वन बाय वन दे दूंगा. सभी रेज कर दो हैंड्स. हेलो पूर्वा. Yes, sir. आज अभी नेटवर्क स्टेबल है बेटा आपका? Is the network stable? Yes, sir. It is stable. Okay, fine, very good. So, I was asking you, do you have any doubt related to the topics that we have covered today? If you have any doubt, No, sir. I have no doubt. okay, fine. Do you want to say something? Yes, sir. Yes, please continue. Sir, I want to appreciate the class. Thank you so much, Bita. Did you find this class useful? Yes, sir. Okay, fine. Thank you so much, Purva. Yes, Nikita. बेटा कोई डाउट? No, sir. ठीक है. क्लास में सब समझ में आ रहा है आपको? कोई दिक्कत तो नहीं है? Yes, sir. Everything is all. Everything is fine. Okay, everything is fine. सब कुछ ठीक चल रहा है. Everything is fine. है ना? Everything is Yes. fine. Okay, very good, Nikita. And Kuldeep Dadich. Yes, Kuldeep. Hello. Hello, sir. Yes, Kuldeep. How do you feel now? How was the session? Yeah, it's wonderful, sir. Amazing. Okay, very good. Did you learn something new today? Yes, sir. Like I corrected my pronunciation. Okay. Like So before, yes, you please. earlier, like I used to pronunciate it wrong. Some words. Okay. So finally, now you have learned that how to pronounce in a correct manner, right? Right, sir. Very good, very good. I would request you to speak in proper manner from today only, and this should be a regular habit, right? Whenever you speak, you should speak in proper manner. Okay, try to Right. correct yourself all the times. खुद की गलतियां निकालने की कोशिश करो जितना सीखा है उसमें से. ठीक है. Right, sir. ये लाइव क्लास अवेलेबल हो जाएगी थोड़ी देर में, तो आपको अगर रिवाइज करना हो तो आप रिवाइज भी कर सकेंगे वहां से. ठीक है. Okay. सरस्वती, आपसे मैं बात कर सकता हूँ क्या थोड़ी देर के लिए? कैन वी हैव अ वर्ड? सरस्वती, एम आई ऑडिबल टू यू? अगर सुन पा रहे हो तो क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? कैन वी हैव अ वर्ड? ओके. हेलो. सर. हाँ, तो आप करते क्या हैं अभी? मतलब स्टडी पूरी हो गई आपकी? नहीं सर, अभी कंप्लीट नहीं है. एमएन सेकेंड ईयर चल रही है. ओके, अभी कंप्लीट कर रहे हो आप, है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया. ठीक है. तो सेशन कैसा लगा? आज पहली बार ज्वाइन किया है आपने या पहले भी ज्वाइन किया है? नहीं सर, आज ही ज्वाइन किया मैंने. आज ही ज्वाइन किया है. ठीक है. एक है ना आपकी ठीक है, कोई बात नहीं, जाने देते हैं. इट्स ओके. एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, है ना, कि अगर कोई डाउट हो ना तो सेम टाइम पे डाउट को पूछना है आपको. हमें यहाँ बर्डन लेके, लोड लेके आगे नहीं बढ़ना है. ठीक है. डाउट है? सर, नो तो डाउट. डाउट आपको क्लियर करना है. हाँ. ठीक है. वेरी गुड. थैंक यू. Nikita, do you want to say something? Komal, okay, I had already have a word with you. I have already had a word with you. Thank you so much. With this, thank you so much and good night to you all. Bye bye.